جزاک اللہ. اب میں تقرری کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 17th September 2023. میں محترم صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. میں Qazi Faiz Isa صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا. اور وفاداری نبھاؤں گا. That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability to the best of my ability and faithfully, and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا. کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا. That I will not allow my personal interest That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. to influence my official conduct or my official decisions. کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. اور یہ کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کسی خوف یا رعایت کے بغیر اور کسی رغبت یا اناد کے بغیر انصاف کروں گا. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. وہ باقاعدہ طور پر
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे से तमाम तर सरगर्मियां सर अंजाम देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया है। आपको बता रहे हैं कि ऐवान सदर में ये तकरीब मुनक्किद की गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब पुरवकार तकरीब थी, जहां पर अहम तरीन शख्सियात इस वक्त मौजूद थी। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस मुमताज़ वकला और दीगर शख्सियात भी शरीक हैं, जबकि तकरीब में निगरां वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद हैं। साथ ही साथ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इख्तिताम पज़ीर होती है। अब मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चलें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया है। आपको बताएं कि तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जबकि दीगर अहम शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में मौजूद थे। साथ निगरां वफाकी काबीना भी इस तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज अपने अहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से अहदे का हल्फ लिया। वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से तमाम तर सरगर्मियां अंजाम देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। कानून की तालीम लंदन से उन्होंने हासिल की। 30 जनवरी 1985 में एडवोकेट हाई कोर्ट, मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त 2009 को जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के ओहदे का हल्फ भी उठाया। बिल्कुल 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। कराची से ओ और ए लेवल का इम्तिहान दिया। कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 1985 में एडवोकेट हाई कोर्ट बने। 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 2009 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। पहली तैनाती ही बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हुई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अहदे का हल्फ लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो अंजाम देंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई और वो हल्फ ले चुके हैं अपने अहदे का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस तकरीब में शरीक हैं और इसके अलावा तमाम मौजूद शख्सियात भी, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात इस तकरीब में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे उनके अहदे का हल्फ लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के नए जो है वो बन चुके हैं चीफ जस्टिस। सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ ले लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बाकायदा तौर पर जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने अहदे का हल्फ ले लिया है। तकरीब में क्या मनाजिर हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात तकरीब में मौजूद हैं? इस वक्त थोड़ी देर पहले जो तकरीब जो है रस्मी तौर पर ख़त्म हुई है और रियासत के हवाले से ये अहम तीन तकरीब में शुमार होती है। जब नया चीफ जस्टिस जो है वो हल्फ उठाता है तो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ उठा लिया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो कि आज तकरीब में कौन कौन लोग मौजूद हैं, तो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस तकरीब में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो है वो मौजूद हैं। वफाकी काबीना के तमाम अरकान मौजूद हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा सीनियर वकला और दीगर कोर्ट, खासतौर से हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर अहम अफराद खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स और काबीना के अरकान भी मौजूद हैं। तकरीब को अभी विटनेस किया है। तकरीब जो है बाकायदा तौर पर रस्मी तौर पर ख़त्म हो गई है और आज से ही यानी इतवार के रोज से ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाकायदा तौर पर अपने मनसब का उहदा जो है वो संभाल लिया है, चार्ज संभाल लिया है। से उनका पहला अदालती दिन होगा जब वो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर बैठेंगे। कल से ही अहम मुकदमात की समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी और यकीन इस बात का भी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि आज अगर कोई ड्यूटी रस्म जारी हुआ
ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری اہم شخصیات اس تقریب کے اندر موجود تھی. طارق چودھری ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. شامل کریں گے نیوز ہیڈ